Hi guys, welcome to my channel. Today we will discuss about what is letter of credit and what are the types of letter of credit in international trade transactions. Letter of credit is also called as documentary credit. As we know that letter of credit is what is an irrevocable undertaking issued by a issuing bank on behalf of its customer, that is importer, favoring towards beneficiary, which guarantees payment for a good or services which is received by the importer, and assure the beneficiary that he will get the payment if the document presented by exporter is as per the that letter of credit terms and conditions, right? तो दिस इज कॉल्ड एलसी। एलसी मतलब वो होता है कि एक अंडरटेकिंग देता है इंपोर्टर का बैंक कि वो बेनिफिशियरी को पे करेगा, बट इफ बेनिफिशियरी प्रोवाइड्स द एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंटेशन विच इज स्टेटेड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। These were the listed were the types of letter of credit in international trade transactions. So let's start each of them in details. Revolving LC. It is that LC which is used when a customer is buying a particular commodity from a particular seller only, right? Or we can say that when the buyer is same, the seller is the same, and the commodity is also the same. So for them, revolving LC is the best. रिवॉल्विंग एलसी वो एलसी होता है जिसमें क्या होता है कि रेगुलर शिपमेंट होता है एक ही कमोडिटी का, एक ही सेलर होता है और एक ही बायर होता है। मतलब एक ही बायर एक ही सेलर से एक ही कमोडिटी बार बार खरीदता बेचता रहता है। तो उन सब के लिए रिवॉल्विंग एलसी इज़ द बेस्ट। रिवॉल्विंग एलसी मतलब वो होता है ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो एक एलसी ओपन हो जाती है, वो ऑटोमेटिक रिन्यू होती रहती है। और मैं ये कहूँ कि रिवॉल्विंग एलसी इज सिंगल एलसी विच कवर्स मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स या मल्टीपल शिपमेंट ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक एलसी सपोज 8 महीने के लिए ओपन हुई है, तो और उसमें एक कंडीशन है कि एवरी मंथ $10,000 का उसको शिपमेंट करना है। तो यानी कि 8 मंथ में उसको $80,000 का शिपमेंट करना है, राइट? तो ईच मंथ उसको $10,000 का शिपमेंट करना होगा। तो हर मंथ 10,000 का शिपमेंट करेगा तो ऑटोमेटिकली अगले मंथ वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगी। तो अगले मंथ $10,000 का करेगा, फिर अगले मंथ 10,000 का, ऐसा करके उसको 8 मंथ में एलसी क्लियर करनी पड़ेगी। सो इंस्टेड ऑफ ओपनिंग ईच एंड एवरी एलसी फॉर ईच एंड एवरी शिपमेंट, सो इट अवॉइड्स दैट पोर्शन कि हम अगर ईच शिपमेंट के लिए ईच एलसी खोलेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स भी रहेगा और कॉस्टली भी रहेगा। तो रिवॉल्विंग एलसी का बेटर एडवांटेज यही है कि अगर आप एक ही चीज़ बाय कर रहे हो, एक ही पार्टी से बाय कर रहे हो, तो आपको बार बार एलसी ओपन कराने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ओपन एन रिवॉल्विंग एलसी। तो इट इज़ बेटर इफ़ यू आर बाइंग सेम कमोडिटी फ्रॉम सेम एक्सपोर्टर, सो इट बेटर यू गो फॉर अ रिवॉल्विंग एलसी। As I mentioned, it is that LC which where the importer and the exporter and the commodity all were the same. It's a single LC which cover multiple shipment, right? Now we will discuss what are the types of revolving LC. Revolving LC we can categorize it in two types. First is based on the time, second is based on value. Based on time, it also categorized under two parts: cumulative revolving LC, another one is non-cumulative revolving LC, right? Cumulative revolving LC is that where the unutilized credit of the previous month it's forwarded to the next month. Suppose, as I mentioned, in every month he has to ship for the 10,000 value, right? Suppose in this month, current month, he has shipped for only $8,000. So 2,000 is remaining from this month. So next month he can ship up to $12,000, as $2,000 is from previous month and $10,000 is for every month. So he can ship for $12,000.
So the previous unutilized portion is now being utilized in the current shipment. So this is called cumulative. क्यूमुलेटिव मतलब ये होता है कि अगर सपोज हम किसी मंथ में $8,000 का शिपमेंट करते हैं, बट हमें करना था 10,000 का, तो हमने किया लेकिन 8,000 का ही, तो 2,000 जो बैलेंस बच गया उसको हम नेक्स्ट शिपमेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये होता है क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव इज जस्ट अपोजिट ऑफ क्यूमुलेटिव। अगर इसमें आपने जो 10 मंथ का क्राइटेरिया है, हर मंथ में आपको $10,000 का शिपमेंट करना पड़ेगा, बट यू हैवंट शिप फॉर दैट मच अमाउंट, राइट? सो इन दिस what you can do is, for the balance portion will not be forwarded to the next shipment, right? मतलब कि आपने अगर 8,000 का शिपमेंट किया है इस करंट मंथ में, तो आपको नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट शिपमेंट में आपको 2,000 जो बैलेंस बचा है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने 8,000 का किया है तो 8,000 का ही रहेगा। अब 2,000 जो बैलेंस बचा है उसको आप अगले मंथ में फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दैट इज नॉन क्यूमुलेटिव। नाउ another type of revolving LC, if we discuss on a based on value. Actually in this now, based on value, the amount or the validity of that LC is particular set where the seller has to work on this criteria. Actually LC का एक अमाउंट, एक वैलिडिटी सेट होती है जिसके अकॉर्डिंग उसको करना होता है। एक जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली रीइंस्टेट होता रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, और जो कि उसके विद इन ओवरऑल एलसी का लिमिट में होगा। जैसा मैंने भाई बताया कि 10,000 का शिपमेंट करना होता है एंड ही हैज़ टू डू विद इन द मंथ, तो शिपमेंट जो होगा हर मंथ में 10,000 का करना होगा। तो यानी उसको 10,000 से ज़्यादा की शिपमेंट भी नहीं कर सकता है और 1 मंथ के अंदर ही करना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल होता रहेगा तो वो नेक्स्ट मंथ में रीइंस्टेट हो जाएगा। This is called based on the value. The revolving LC based on a value is what? There is a particular amount is set, a validity of that amount is set till that LC is expired. So this is about revolving LC. Now we will discuss about one of the type of LC, UPAS LC. As we can see this in this pic, UPAS LC is what? UPLC plus ASLC, right? UPLC stand for Usance Payable LC. ASLC stand for At Site LC. UP for Usance Payable, LC for Letter of Credit. AS for At Site, LC for LC, right? So Usance LC is which is payable on site, that is called UPAS LC. जो यूजांस एलसी साइट में पे होती है उसको हम यूपीएस एलसी बोलते हैं, राइट? तो हम कह सकता हूँ यूपीएस एलसी इज व्हाट? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइट एलसी एंड यूजांस एलसी। यूपीएस एलसी में क्या होता है? यूपीएस एलसी में 2 पेमेंट टर्म्स होती हैं, साइट पेमेंट भी होती है और यूजांस पेमेंट भी होती है, राइट? तो यूपीएस एलसी इज व्हाट? इज अ यूजांस एलसी विच इज पेबल एट साइट टू बेनिफिट, यानी कि एक यूजांस पेमेंट टर्म्स की एलसी जो होती है जिसमें बेनिफिशियरी को पेमेंट साइट पे मिलती है, दैट इज कॉल्ड यूपीएस एलसी। अब इसमें जो होता है पेमेंट जो सेटल होती है एप्लीकेंट और इशूइंग बैंक के बीच में, वो जब भी एलसी ख़त्म होगा या एक्सपायरी ख़त्म होगा यूजांस पीरियड का तब सेटल होगा, या जब भी वो मेच्योरिटी हो गया इस पर यूजांस टर्म तब सेटल होगा इशूइंग बैंक और एप्लीकेंट के बीच में। So the payment settled between applicant and issuing bank will be based on the expiry of the usance period, or we can say that at the end of the usance period, or as per the credit terms and conditions. But the payment settled between issuing bank and the beneficiary is made on site basis, which is non-recourse basis. What is non-recourse basis? We will discuss in this video only later. UPAS LC. Here the applicant pays interest for the availed usance period, or we can say that availed extended credit. UPAS LC में क्या होता है कि इशूइंग बैंक ने तो बेनिफिशियरी को पे कर दिया साइट पे,
बट वेयर एप्लीकेंट जो बेनिफिट इशूइंग बैंक को पे करेगा, एप्लीकेंट जब इशूइंग बैंक को पे करेगा तो वो तो फ्यूचर डेट पे करेगा, यूजांस टर्म के बेसिस पे। तो जितना डेज के लिए उसको क्रेडिट मिला हुआ है उतना डेज का उसको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना इशूइंग बैंक को। इशूइंग बैंक ने तो आज पे कर दिया, अब बट एप्लीकेंट तो इशूइंग बैंक को कई दिनों बाद देगा, जो भी उसकी पेमेंट टर्म्स है 30 डेज 90 डेज वट एवर द डेट, तो उसको उतने दिन बाद देना पड़ेगा। तो उतने दिन का इंटरेस्ट कौन बेयर करेगा? दैट इज बियर्ड बाय द एप्लीकेंट ओनली। तो जब भी उसका मेच्योरिटी डेट होगा, जब भी एलसी का पेमेंट डेट आएगा एज पर द यूजांस टर्म, तो एप्लीकेंट क्या प्रोवाइड करेगा? पेमेंट इंस्ट्रक्शन देगा टू इशूइंग बैंक विद प्रिंसिपल वैल्यू एज वेल एज फॉर इंटरेस्ट वैल्यू एज। So now we will study what is the process flow of that UPS LC. Here also the same. There were four parties were involved: importer and the exporter, importer bank and exporter bank. As usual, there is the agreement happened between importer and the exporter. After that, importer applies for an LC issuance request with his bank, that is importer's bank, or we can say the opener bank, opening bank, issuing bank, applicant bank. These were the name of the importer's bank. Importer bank checks the document, and after checking that document, it transmits that LC along with that UPAS clause, right? Exporter bank will receive the LC from issuing bank. Then exporter bank will check the authenticity of that LC, and after that it will advise to the exporter. Once the LC is advised with exporter, the exporter will go through that LC. After that, he will make the shipment. He will surrender his good to the shipping company, and in return that shipping company will provide original shipping document to the exporter, which the exporter will submit to his bank. When the shipping document is submitted with the exporter bank, then exporter bank will forward these documents to the importer bank. Once the document received, the importer bank will verify those documents whether they were a complying presentation or it is a discrepant bill. If it is found that it's a discrepant bill, it will inform the exporter bank that it's a discrepant bill, he can't make the payment. But if it is a clean bill, then the importer bank will make the payment immediately within the 5 days period to the exporter bank. After that, exporter bank will settle the account in the exporter bank will settle the payment in the account of exporter. After that, on the maturity of that LC, the importer will provide payment authority along with that interest amount as well to the importer bank. After that, importer bank will release the document. Post importer gets the document from issuing bank, he will surrender those documents to the shipping company and will take over the goods from custody of that shipping company. So this is all about the process flow of a UPS LC. Back to back LC. As the name suggests, back to back. Here means a one LC is open and after that again another one LC is also open. So we can say that in back to back LC there were two LCs were issued. बैक टू बैक एलसी जैसा नाम ही बता रहा है हमें, बैक टू बैक यानी एक के बाद एक। तो बैक टू बैक एलसी में क्या होता है, दो एलसी ओपन होती हैं, ठीक है। एक एलसी ओपन होती है नॉर्मल एलसी की तरह, दूसरी एलसी पहली वाली एलसी को सिक्योरिटी के रूप में रखकर दूसरी एलसी जो ओपन होती है दैट इज कॉल्ड बैक टू बैक एलसी। बैक टू बैक एलसी को मैं काउंटर वेलिंग क्रेडिट भी बोल सकता हूँ, काउंटर वेलिंग एलसी भी बोल सकता हूँ। As we can see in this back-to-back LC, in this two credit were issued. Two credit were issued मतलब means that two LC were issued. Credit one means LC1 first LC were issued between buyer and the agent. Buyer LC इशू का पहली जो LC होती है बैक टू बैक LC में जो पहली LC इशू होती है वो बायर इशू करवाता है किसके फेवर में, एजेंट के फेवर में। एजेंट को मैं मिडल मैन भी बोल सकता हूँ, ट्रेडर भी बोल सकता हूँ, मीडिएटर भी बोल सकता हूँ। तो मिडल मैन के कई नाम हैं, एजेंट, ट्रेडर, मीडिएटरी।
तो पहली एलसी बायर इशू कराता है किसके फेवर में, एजेंट के फेवर में। दूसरी एलसी एजेंट खुलवाता है अल्टीमेट जो सप्लायर होता है, यानी जो एंड सप्लायर होता है, जो अल्टीमेट जिसको सप्लाई करना होता है गुड्स, उसके फेवर में। तो हम देख सकते हैं इसमें दो एलसी इशू हुई है। पहली एलसी इशू कराई है बायर ने एजेंट के फेवर में। आफ्टर दैट सेकेंड एलसी एजेंट ने इशू करवाई है सप्लायर के फेवर में। तो एक के बाद दो एलसी इशू हुई है। अब बैक टू बैक एलसी होता क्या है? जो बैंक का कस्टमर होता है ना, बैक टू बैक एलसी में वो क्या होता है, एजेंट होता है। जो बैंक बैक टू बैक एलसी ओपन करता है तो उसका जो कस्टमर होता है वो एजेंट होता है, तभी वो बैक टू बैक एलसी ओपन करवा पाएगा, राइट। तो बैक टू बैक एलसी में बैंक का कस्टमर हुआ एजेंट, जिसको मिडलमैन, ट्रेडर, मीडिएटरी जो भी बोल सकता हूँ। तो एजेंट क्या होता है, वो बीच में होता है बायर और सेलर के बीच में, यानी वो बायर से भी कमीशन ले रहा है, सेलर से भी कमीशन ले रहा है, राइट। तो बैक टू बैक एलसी कब खुलती है? बैक टू बैक एलसी क्या होता है इसमें, पहले तो एजेंट के पास एलसी आएगी, यानी बायर एलसी खुलवाएगा तो एजेंट के फेवर में एलसी खुलवाएगा, पहले क्रेडिट। जैसा कि हमने इसमें देखा था, पहली एलसी कौन खुलवाता है, बायर खुलवाता है, किसके फेवर में, एजेंट के फेवर में। तो यहाँ पे जब एजेंट के फेवर में एलसी आएगी, यानी एजेंट इज व्हाट, एजेंट इज द बेनिफिशियरी, एक्सपोर्टर एजेंट। तो एक्सपोर्टर के फेवर में जब एलसी आएगी तो कौन सी एलसी हुई, वो एक्सपोर्ट एलसी हुई ना, राइट। तो पहली जो एलसी होती है वो एक्सपोर्ट एलसी हुई, जो एजेंट के फेवर में इशू होकर आई है। बायर इज द इंपोर्टर एंड एजेंट इज द एक्सपोर्टर। तो पहली एलसी जो इशू हुई दैट इज मास्टर एलसी या मास्टर डीसी भी बोल सकता हूँ, राइट। जो बायर के बैंक ने ओपन कराई है, मैं उसको बायर का बैंक जो एलसी इशू करवाता है, तो पहली एलसी जो इशू होती है बिटवीन द बायर एंड द एजेंट इज कॉल्ड द मास्टर एलसी। अब जब एक्सपोर्ट एलसी आ गई एजेंट के पास, तो एजेंट क्या करेगा, अब उस एक्सपोर्ट एलसी को सिक्योरिटी के रूप में रखकर एक नई एलसी खुलवाएगा। यानी कि पहले तो एजेंट एक्सपोर्टर था, जब बायर और एजेंट के बीच में डील हो रहा था तो उस केस में एजेंट इज द एक्सपोर्टर, सो ही हैज रिसीव द एक्सपोर्ट एलसी। नाउ एजेंट इज प्लेसिंग हिज रिक्वेस्ट विद हिज बैंक टू इशू अ न्यू एलसी बेसिस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ दैट प्रीवियस एलसी। तो अब एजेंट एलसी इशुएंस करने की रिक्वेस्ट दे रहा है, तो अब एजेंट क्या हुआ, इंपोर्टर हुआ, राइट। बायर और एजेंट के बीच में तो बायर इज द बायर एंड एजेंट इज द सेलर। अब सेकंड एलसी जो ओपन हो रही है वो ओपन करा रहा है एजेंट। तो जब एलसी ओपन कराने वाला कौन होता है, इंपोर्टर होता है। तो एजेंट इज कौन, एजेंट इज द इंपोर्टर। नाउ agent is the importer, now he is issuing that LC through his bank favoring that beneficiary. Now who is this beneficiary? Now that beneficiary is the ultimate supplier, right? So now we have understand these things. Now first LC is issued between the buyer and the agent, and the second LC is issued between the agent and the supplier, right? Once the LC is issued, right, whenever the first LC is issued, that is the export LC, जो एजेंट के लिए वो क्या हुई, जो पहले एलसी ओपन हुई थी वो एजेंट के लिए एक्सपोर्ट एलसी थी ना, उसमें एक्सपोर्टर का रोल ही तो निभा रहा था एजेंट। तो फॉर एजेंट इट्स अ एक्सपोर्ट एलसी। तो ओरिजिनल में वो फर्स्ट एलसी थी, मैं उसको ओरिजिनल एलसी भी बोल सकता हूँ, मैं या मास्टर एलसी भी बोल सकता हूँ। अब मुझे एक बेसिक सा कंसेप्ट है, अगर एजेंट को बीच में काम कर रहा है, एजेंट इंपोर्टर और सेलर के बीच में काम कर रहा है, तो उसको अगर अपना बिजनेस या अपना कमीशन निकालना होगा तो किससे निकालेगा, वो अपना कमीशन मास्टर एलसी में से निकालेगा। मैं बोलूँ तो फिर बायर से निकालेगा, कहने का मतलब।
अब वो बायर से अपना कमीशन कैसे निकालेगा? वो ऐसे निकालेगा कि जब उसने सेकंड एलसी इशू करवाई थी तो वो तो इम्पोर्टर हो गया, सेकंड एलसी इशू करवाई एजेंट ने, और सेकंड पार्टी जो बेनिफिशियरी है वो सप्लायर हुआ। अब सप्लायर ने अपना डिमांड रखा कि मेरा ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये यूनिट प्राइस है, ये इसका टोटल वैल्यू है। नाउ इम्पोर्ट दैट एजेंट हैज़ टू मेक द पेमेंट टू द सेलर, यानी कि जितना सेलर ने बोला है कि उसका गुड्स का वैल्यू ये है या उसकी सर्विस का वैल्यू ये है, तो एजेंट हैज़ टू मेक द पेमेंट फॉर दैट मच अमाउंट। अब उसने एजेंट ने पे तो कर दिया, लेकिन अब उसने पे कर दिया तो उसका तो पैसा चला गया। अब वो अपना पैसा भी रिकवर करे और साथ में साथ अपना कमीशन भी रिकवर करे, तो किस में से करेगा भाई? कमीशन अगर लोगे तो लोगे किस केस में? जब आप एक्सपोर्टर होगे तभी तो आपके पास पैसा आएगा। अगर आप इम्पोर्टर होंगे तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा ना। इम्पोर्टर क्या करता है? पे करता है, तभी तो उसको गुड्स या सर्विस मिलती है। तो इम्पोर्टर एजेंट क्या है, कमीशन के लिए काम करता है इस बैक टू बैक एलसी में। तो एजेंट को अपना कमीशन कब मिलेगा? जब वो एक्सपोर्टर होगा। तो किस केस में एक्सपोर्टर होगा? दैट इज इन द फर्स्ट एलसी, यानी जो बायर ने एलसी खुलवाई है एक्सपोर्टर के फेवर में, यानी एजेंट के फेवर में। वो एक्सपोर्ट करेगा तभी तो उसको पैसा मिलेगा। इम्पोर्टर को पैसा थोड़ी मिलता है कभी भी। इम्पोर्टर तो हमेशा पे करता है ना सर्विस लेने के या गुड्स लेने के बाद। तो एजेंट को अपना कमीशन जो रिकवर करेगा दैट इज फ्रॉम बायर। यानी कि सपोज करो जो सप्लायर है सेकंड एलसी में जो ओपन हुई थी इसके फेवर में, उसने सपोज करो $10,000 का शिपमेंट कर दिया। टोटल एलसी $10,000 की खुली थी सेकंड एलसी, उसने $10,000 का शिपमेंट कर दिया। तो जो फर्स्ट एलसी होगी ना, वो हमेशा याद रखना, वो दैट इज विल बी मोर देन $10,000। यानी कि सपोज करो वो $12,000 की थी, तो सप्लायर जो एजेंट है उसने सप्लायर को कितना पे किया? $10,000। बट अब वो बायर से कितना ले रहा है? $12,000, यानी दैट $2,000 इज प्रॉफिट। तो यही सेकंड नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब भी सप्लायर से डॉक्यूमेंट उसके पास आएगा एजेंट के पास, तो एजेंट व्हाट विल एजेंट डू इन दिस? एजेंट विल रिप्लेस दैट इनवॉइस एंड दैट ड्राफ्ट। That is draft means that bill of exchange, which is also called as a financial document, right? So that agent will replace those document. As I mentioned, suppose that a supplier has provided invoice value of 10,000 and draft was for 10,000. So now that agent will change that invoice. Here the agent will make the invoice for 12,000 and draft also for 12,000. So now he has already made the payment of $10,000 to the supplier, but now he will receive $12,000 from this buyer. So now he is gaining $2,000 from this transaction. So what is $2,000? $2,000 is being his profit only, right? So in this point, as mentioned, is that bank will in back-to-back LC, bank customer will present his own set of invoice, यानी वो खुद की इन्वॉइस और खुद का ड्राफ्ट देगा हायर वैल्यू पे। भाई उसने तो पे कर दिया सप्लायर को, तो उसका तो पैसा चला गया ना। अब उसको कमीशन भी लेना है और अपना पैसा भी वापस लेना है। तो पैसा जब बायर से लेगा तो उससे ज़्यादा ही वैल्यू लेगा, तभी तो उसको पैसा मिलेगा और कमीशन भी मिलेगा। तो वो जो सप्लायर के पास डॉक्यूमेंट आएगा उसमें से इन्वॉइस और ड्राफ्ट चेंज करके अपना ज़्यादा वैल्यू का ड्राफ्ट और इन्वॉइस दे देगा बायर को। देन बायर हैज़ टू मेक द पेमेंट। मास्टर एलसी यहाँ पर डिनोट कर रहा है जो फर्स्ट एलसी इशू हुई थी, बायर ने जो एलसी इशू करवाई थी एजेंट के फेवर में, जिसके बेसिस पे वो एक और एलसी इशू हुई थी। तो ओरिजिनली द फर्स्ट एलसी इज मास्टर एलसी और वी कैन से दैट ओरिजिनल एलसी। तो जो एजेंट को पैसा मिलेगा वो मास्टर एलसी का जब पैसा आएगा तब मिलेगा, राइट? जैसा कि मैंने बताया मास्टर एलसी में जो पेमेंट आएगी वो ज़्यादा आएगी देन इम्पोर्ट एलसी। इम्पोर्ट एलसी आपने इम्पोर्ट एलसी एजेंट के लिए कब हुआ? जब उसने सेकंड एलसी ओपन करवाई थी। इम्पोर्ट एलसी तभी होता है जब वो कोई इम्पोर्ट करता है। तो इम्पोर्टर खुलवा रहा है और इम्पोर्ट कर रहा है, तो क्या हुआ? सेकंड एलसी इशू हुई थी जो एजेंट ने सेलर के बीच में खुलवाई थी। तो उसका तो पेमेंट उसने 10,000 दिया, बट उसने जो बायर से पेमेंट लिया वो 12,000 लिया। तो बायर से जो पेमेंट लिया दैट इज कॉल्ड मास्टर एलसी या एक्सपोर्ट एलसी।
we can say that, right? Now one of the most important thing about back-to-back LC is that back-to-back LC is issued on the responsibility of bank which issued second LC. बैक टू बैक एलसी में जो सेकंड एलसी इशू होती है वो फर्स्ट एलसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. कंसर्न इज दैट बैक टू बैक एलसी में दो एलसी इशू हुई, सबकी अपना अपनी अपनी अंडरटेकिंग है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर सपोज फर्स्ट एलसी में इशूइंग बैंक फेल हो गया पेमेंट देने से, तो सेकंड एलसी तो वैसे ही डूब गई. नाउ वी विल मेक द पेमेंट फॉर दैट. So it's the responsibility of that second bank to make sure that he will get the payment. So in this, the first bank which is opening that LC, that is buyer bank, has no responsibility in that issuing second LC through some another bank or some agent bank or whatever it is. So every bank which issues a separate LC has its own undertaking. बायर के बैंक ने जो एलसी ओपन करी है एजेंट के फेवर में, उसकी एक अलग अंडरटेकिंग है. एजेंट ने जो एलसी ओपन कराई है सप्लायर के फेवर में, उसकी एक अलग अंडरटेकिंग है. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज काउंटर एलसी एंड द बैक टू बैक एलसी. बैक टू बैक एलसी, व्हेन द सेकंड एलसी इज इशूड बाय the advising bank which advised the first LC, means जब बायर ने LC ओपन कराई थी इन फेवर ऑफ एजेंट, तो एजेंट के बैंक के पास जब LC आई, एजेंट के बैंक ने एजेंट को एडवाइस कर दिया, राइट? बायर के बैंक ने LC इशू करी और एजेंट के बैंक को भेज दिया और एजेंट ने उसके बैंक को एडवाइस कर दिया एजेंट को. अब नाउ पॉइंट इज दैट if agent gets the import LC issued from that bank only, then it is called a back to back LC. मतलब जब बायर ने अपने बैंक के थ्रू LC ओपन करवाया था और जब बायर के बैंक ने LC इशू करके एजेंट के बैंक को भेजा, तो एजेंट का बैंक क्या करेगा, उस LC को एडवाइस करेगा एजेंट को, राइट? जब LC एडवाइस हो गया एजेंट के पास, तो जिस बैंक ने एलसी एडवाइस करी एजेंट को, यानी एजेंट का बैंक, जब वो एक एलसी और खोलेगा, यानी जब वो सेकंड एलसी वही खोलेगा, यानी फर्स्ट एलसी एडवाइस करने वाला और सेकंड एलसी ओपन करने वाला अगर बैंक सेम है, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ बैक टू बैक एलसी. मेरा पॉइंट ध्यान रखना. इफ द फर्स्ट एलसी इज एडवाइज बाय दैट बैंक ऑल्सो ओपन द अनदर एलसी, दैट इज कॉल्ड बैक टू बैक एलसी. पहली एलसी जिसने एडवाइस करी थी, जिस बैंक ने एडवाइस करी थी, वही बैंक दूसरी एलसी खोलता है, दैट इज कॉल्ड बैक टू बैक एलसी, राइट? काउंटर एलसी वो होता है जिसमें एडवाइजिंग बैंक कोई और होता है एंड एजेंट का बैंक कोई और होता है, राइट? दिस इज कॉल्ड काउंटर एलसी. यानी कि जब बायर के बैंक ने एलसी ओपन करी तो एडवाइजिंग बैंक को भेजा. इन दिस एडवाइजिंग बैंक इज अ डिफरेंट बैंक एंड एजेंट बैंक इज अ डिफरेंट बैंक. तो एलसी एडवाइस करने वाला भी कोई और बैंक, ओपन करने वाला भी कोई और बैंक, तो देन इट इज कॉल्ड अ काउंटर एलसी. बट इफ द एडवाइजिंग ऑफ द फर्स्ट क्रेडिट एंड द इशूइंग ऑफ द फर्स्ट सेकंड एलसी, advising of the first credit and issuing of the second LC is done by the same bank, then it will be called as back to back LC. Now we will discuss one of the most important type of LC, irrevocable LC. irrevocable LC वो LC होती है जो सबसे ज़्यादा यूज्ड की जाती है इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन. मेजॉरिटी ऑफ LC ऑफ दिस टाइप ओनली. इरेवोकेबल एलसी वो एलसी होती है, ना तो वो अमेंड हो सकती है, ना ही वो कैंसिल हो सकती है, अनटिल एंड अनलेस वी हैव द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व इन दैट एलसी ट्रांजैक्शन. इरेवोकेबल एलसी वो एलसी होती है जिसमें हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, अनटिल हम जब तक हमारे पास
उस एलसी ट्रांजैक्शन में जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन सबका कंसेंट हो, एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी, इशूइंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, वट एवर इट इज. Until unless we have a confirmation from all parties to cancel that LC or amend that LC, we can't do that. So we can say that this type of LC is providing full protection to the seller as well as to the buyer. It's one of the most secure type of LC. रेवोकेबल एलसी जब ना तो अमेंड हो सकती है ना ही कैंसिल हो सकती है जब तक सबकी सहमति ना हो, तो ये क्या हुआ, ये एक्सपोर्टर के लिए भी बहुत सेफ है और इम्पोर्टर के लिए भी सेफ है और सबसे ज़्यादा यूज टाइप ऑफ एलसी है ये. वन ऑफ द मेन पॉइंट ऑफ दिस एलसी इज ऑल्सो दैट if any LC is issued but it is not depicting that it what type of LC it is, then it will be considered as irrevocable LC as per the article 3 of the UCP. मतलब अगर कोई LC इशू होता है, अगर इशूइंग बैंक कोई LC इशू करता है और उसमें वो नहीं लिखता है कि कौन सी टाइप की LC है, whether it is irrevocable, confirm LC, unconfirm, UPAS LC, whatever it is, अगर वो ये मेंशन नहीं करता है इस LC की कौन सी टाइप है, then it will be considered as irrevocable LC. UCP 600 गवर्न करता है LC के ट्रांजैक्शन को. इसके आर्टिकल नंबर 3 में लिखा हुआ है, अगर किसी LC इशुएंस में नहीं लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ LC कौन सी है, then it will be considered as irrevocable LC. Now revocable LC is just opposite to irrevocable LC. रेवोकेबल एलसी वो एलसी होती है जो इम्पोर्टर और इशूइंग बैंक को ये राइट देती है कि आप कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हो. अमेंडमेंट मीन्स कुछ भी आप चेंज कर सकते हो. एलसी को आप कैंसिल कर सकते हो किसी को बिना बताए. तो ये तो रिस्की पॉइंट हुआ ना. मतलब एलसी इशूइंग करने वाला इशूइंग बैंक जिसकी लायबिलिटी बनती है जब से वो एलसी इशू करता है, उसको ये राइट दे दी जाए कि आप एलसी को कुछ भी चेंज कर सकते हो, कोई भी क्लॉज चेंज कर सकते हो, कोई पॉइंट चेंज कर सकते हो, या आप एलसी को ही क्लोज कर सकते हो या कैंसिल कर सकते हो. तो ये रिस्की पॉइंट हुआ सेलर के लिए, क्योंकि अगर एलसी कैंसिल ही हो जाएगी तो फिर सेलर को तो रिस्क रहा ना. तो सेलर को प्रोटेक्शन तो इसमें है ही नहीं. रेवोकेबल एलसी में सेलर को प्रोटेक्शन है ही नहीं, क्योंकि एलसी जब अपने आप ही कैंसिल कर देगा इशूइंग बैंक या अमेंड कर देगा तो उसको रिस्क हुआ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे कम यूज़ करी जाने वाली एलसी होती है, क्योंकि जब रिस्की इसमें एलसी कब ओपन होती है, जब सेलर को रिस्क रहे कि इम्पोर्टर पे करे ना करे, तो उसके बैंक से अंडरटेकिंग लेता है ना सेलर, मुझे अपने बैंक से अंडरटेकिंग दिलाओ, अगर आप पे नहीं करेगा आपका बैंक पे करेगा. इस एलसी में कुछ भी चेंज हो सकता है किसी को बिना बताए, तो फिर एलसी का मतलब क्या रहा. तो रेवोकेबल एलसी हाईली रिस्की और लेस फ्रिक्वेंटली यूज टाइप ऑफ एलसी इज दिस. अगर कोई भी एलसी ओपन होती है, जैसा मैंने बताया, अगर उसमें नहीं लिखा हुआ है कि विच टाइप ऑफ एलसी इट, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज इररेवोकेबल. सेकेंड पॉइंट इज दैट इफ इट इज मेंशन दैट इट इज़ दिस टाइप ऑफ, मौला उसमें मेंशन है कि ये रेवोकेबल एलसी है, या वो मेंशन है कि ये यूपीएस एलसी है, स्टैंड बाय एलसी है, रेड क्लॉज एलसी है. अगर उसमें मेंशन है कि इट इज़ दैट टाइप ऑफ एलसी, देन इट इज़ ओके. इफ इट इज़ नॉट मेंशन, देन इट विल कंसिडर एज इररेवोकेबल. बट अगर ये रेवोकेबल एलसी है तो उस एलसी में मेंशन होना चाहिए कि दिस एलसी इज सब्जेक्टेड टू रेवोकेबल, देन इट विल बी कंसिडर्ड रेवोकेबल एलसी. Now we will understand another type of LC, that is transfer LC. ट्रांसफ़र एलसी ऐसा जैसा हमें नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसफ़र एलसी यानी कि एक एलसी इशू हो उसके बाद वो किसी दूसरे बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र कर दी जाए, यानी सेकंड बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र कर दी जाए, दैट इज़ कॉल्ड सेकंड बेनिफिशियरी. और वी कैन से दैट ए एलसी विच इज़ ओपनड बाय इशूइंग बैंक एंड द सेम इज ट्रांसफर टू some another beneficiary, or we can say the second beneficiary, right. ट्रांसफर एलसी में सिर्फ एक ही एलसी ओपन होती है जिसको फर्दर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं सेकंड बेनिफिशियरी को. होल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पार्शली भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि एलसी पूरी की पूरी एलसी फर्स्ट बेनिफिशियरी से सेकंड बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र कर दी जाए, या फर्स्ट बेनिफिशियरी से सेकंड बेनिफिशियरी को आधी ट्रांसफ़र कर दी जाए. बट इसमें एलसी ओपन होती है एक ही,
जहाँ की बैक टू बैक एलसी में 2 एलसी ओपन होती थी. So it is the major difference between transfer LC and back to back LC is that in back to back LC we will issue 2 LC. In transfer LC there is only one LC issued. अब ट्रांसफर एलसी वही एलसी कहलाएगी जहाँ पर अगर वो क्रेडिट में लिखा हुआ है या एलसी के टर्म में लिखा हुआ है कि दैट इज इट इज़ ट्रांसफरेबल. अगर क्रेडिट में लिखा हुआ है कि इट इज ट्रांसफरेबल देन इट विल कॉल्ड अ ट्रांसफर एलसी, एल्स इट विल नॉट बी कंसिडर एज ट्रांसफर एलसी एंड इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू सेकंड बेनिफिशियरी. अगर एलसी में नहीं लिखा हुआ है कि ये ट्रांसफर एलसी है या ट्रांसफर हो सकती है देन हम इसको ट्रांसफर एलसी कंसिडर नहीं कर सकते हैं. अगर लिखा हुआ है देन वी कैन ट्रांसफर दिस एलसी टू द सेकंड बेनिफिशियरी. So it credit need to be credit need to be called as a transfer LC, then it has to be mentioned that it will be transferable. Now we will discuss the process flow in our easiest manner. As we can see here, there were 5 parties were involved. One is the issuer. Issuer means the issuing bank, buyer, seller, and the bank, nominated bank, and the ultimate second beneficiary. Transferee beneficiary means the second beneficiary. There is a contract happened between the buyer and the seller, and another contract happened between the second beneficiary and the first beneficiary. इसमें एक्चुअली 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में, एक होता है सेलर और सेकंड बेनिफिशियरी के बीच में. राइट, 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. पहला कॉन्ट्रैक्ट में फुलफिल होता है एप्लीकेंट और फर्स्ट बेनिफिशियरी का. तो एप्लीकेंट अपने बैंक के पास जाता है, एलसी इशू करवाता है, ROLC. फर्स्ट बेनिफिशियरी के बैंक के पास जाती है, वो उसको एडवाइस करता है. जब फर्स्ट बेनिफिशियरी के पास एलसी एडवाइस हो गई तो फर्स्ट बेनिफिशियरी क्या करेगा कि नॉमिनेटेड बैंक जो है एलसी में जो दैट कैन ट्रांसफर दैट एलसी, तो वो उसको रिक्वेस्ट देगा कि प्लीज़ ट्रांसफर दिस एलसी टू दिस सेकंड बेनिफिशियरी. सो नॉमिनेटेड बैंक विल ट्रांसफर दैट एलसी टू द सेकंड बेनिफिशियरी एंड द सेकंड बेनिफिशियरी विल शिप द गुड्स टू द बायर. So this is the process flow. Now we will discuss the process flow of transfer LC in deep. As we can see in this picture, there were multiple parties were involved here. We will discuss separately all of these, right? First, there is the importer and the first beneficiary. One beneficiary I mentioned, right? First of all, there is an agreement happened between the importer and the first beneficiary. Basis on that agreement, the importer applies for an LC issuance request with his bank, importer bank. Importer bank will transmit this LC with transfer clause to exporter bank, or we can say that first beneficiary bank. The first beneficiary bank will advise that LC to first beneficiary. After checking that LC, the first beneficiary will apply for transferring a whole portion of that LC or some partial portion of that LC through his bank to the supplier bank, or we can say to second beneficiary. Once the LC is transferred to the second beneficiary, then second beneficiary bank, then that second beneficiary bank will advise that LC to the second beneficiary. After that, second beneficiary will ship the goods and will submit the document to his bank, supplier bank, or we can say second beneficiary bank or manufacturer bank, we can say that. After that, once the second beneficiary bank has forwarded document to the first beneficiary bank, after receiving the document, the exporter bank will verify those documents, and if it found clean bill, then the exporter bank will make the payment to the manufacturer bank or supplier bank or second beneficiary bank. Then second beneficiary bank will settle the payment in second beneficiary account. After that, when the document is received by a first beneficiary from second beneficiary, then the first beneficiary will substitute the invoice and the draft and will present his own set of
to his bank, that is exporter bank. After that, that exporter bank will forward those documents to importers bank. Then importer bank will make the payment to the exporters bank, and that exporter bank will settle that payment to first beneficiary account. After that, issuing bank, the importers bank will release the document. After that, issuing bank will release the document. So this is all about the process flow of that LC. Right? Now we will understand the process flow of transfer LC along with an example. Here we can see that there is importer bank, and the exporter and his bank, and the manufacturer and his bank. Right? First of all, there is an agreement happen between buyer and the seller, and the seller and the manufacturer, right? After that, importer applies for an LC issuance request. Suppose the issuing bank issued a transfer LC for amount $50,000. So importer bank, or we can say that a issuing bank, has opened a transfer LC for amounting $50,000. Then exporter bank has forwarded or advised that LC to exporter that we have received a transfer LC for amount $50,000. After that, as per the terms and condition between the first beneficiary and the second beneficiary, then the first beneficiary will apply a request to transfer that LC to the second beneficiary. Suppose as per the terms between the manufacturer or second supplier or the first beneficiary, suppose there is a transfer LC need to be transferred to second beneficiary for amounting $30,000. So here the first beneficiary will request his bank to transfer LC for amounting $30,000. The first beneficiary bank will transfer that LC to manufacturer bank. Manufacturer bank matlab second beneficiary bank. Okay. That second beneficiary bank will advise that LC to the second beneficiary that we have received for $30,000 LC to advise. Once he has received the LC, he will ship the goods to the importer directly, or it can ship to the first beneficiary also. But the document will flow through first beneficiary only. So once he has shipped the goods, he will submit those documents to his bank, that is manufacturer bank or second beneficiary bank. Then second beneficiary bank will forward those documents to first beneficiary bank, and when the document is received with the first beneficiary bank, then that will inform first beneficiary that we have received document from manufacturer bank. After that, the first beneficiary will substitute the invoice and the bill of exchange presented by the manufacturer bank and will submit the revised document through his bank to the issuing bank. Once the issuing bank has received the document, he will check the document and will make the payment of $50,000 to exporter bank. Once exporter bank has received $50,000, he will transfer $30,000 to manufacturer bank. So this is all about the process flow. Hope you will understand. Now what we need to understand here, the bank which is transferring that LC is called transferring bank, as we all know that. So how the process flow in this? The process flow between here is that applicant request his bank, that is IB, issuing bank request advising bank, AB. After that, AB transfer that LC to the beneficiary, then beneficiary applies that transfer LC request to nominated bank, or we can say that a transferring bank. Then it will advise that LC to the second beneficiary. This is the process flow of that LC. Now ट्रांसफर एलसी का यूज हमें कब पड़ता है? ट्रांसफर एलसी का यूज हमें जब पड़ता है जब जो मिडल मैन होता है. ट्रांसफर एलसी में भी तीन पार्टी होती हैं, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और बीच में मिडल मैन या एजेंट या ट्रेडर बोल सकते हैं, जैसे बैक टू बैक में होता था. बट बैक टू बैक में दो एलसी ओपन होते हैं, यहाँ पे एक एलसी ओपन होती है. तो
ट्रांसफर एलसी जब इशू होता है कि जो मिडल मैन होता है या एजेंट होता है उसके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो जो अल्टीमेट सप्लायर है उससे गुड्स बाय करे और उसके बाद फाइनल कस्टमर को सेल कर दे। जब उसके पास इतना पैसा नहीं है तभी तो वो दूसरे पे से बाय करेगा और दूसरे को बेचेगा। यही तो ट्रांसफर एलसी होता है। तो ट्रांसफर एलसी कब यूज़ होता है? जब मीडिएटर के पास या ट्रेडर के पास, एजेंट के पास, मिडल मैन के पास जब इतना कैपिटल नहीं होता है कि वो गुड्स बाय कर पाए और फिर उसको सेल कर पाए। तो वो पहले क्या करता है? पहले गुड्स बाय करता है, आफ्टर दैट वो गुड्स को सेल करता है इम्पोर्टर को। तो ट्रांसफर एलसी ये होता है। नाउ अनदर टाइप ऑफ एलसी इज अनकन्फर्म एलसी। अनकन्फर्म एलसी वो एलसी होती है जिसमें कोई कंफर्मेशन देता ही नहीं है कन्फर्मिंग बैंक। यानी एलसी इशू हुआ, एडवाइस हुआ, एलसी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुआ, इशूइंग बैंक के पास डॉक्यूमेंट आया, उसने पेमेंट करा और दैट्स ऑल। तो यानी किसी भी तरीके का कोई कंफर्मेशन ऐड नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड अनकन्फर्म एलसी। एलसी वेयर देयर इज नो अंडरटेकिंग और कंफर्मेशन इज एडेड टू द अंडरटेकिंग ऑफ इशूइंग बैंक बाय द कंफर्मिंग बैंक इज कॉल्ड एज अनकन्फर्म एलसी। अनकन्फर्म एलसी वो एलसी होती है जिसमें कि जो इशूइंग बैंक ने अंडरटेकिंग दिया है कि मैं ड्यू डेट पे कर दूंगा, उसकी अंडरटेकिंग के ऊपर एक और अंडरटेकिंग देना, दैट इज कॉल्ड कंफर्मेशन। बट अगर वो कंफर्मेशन नहीं है, दैट इज इट इज कॉल्ड अनकन्फर्म एलसी। अनकन्फर्म एलसी को मैं नॉर्मल इररेवोकेबल एलसी भी बोल सकता हूँ। अनटिल अनलेस अगर किसी एलसी में कंफर्मेशन नहीं है, दैट इज अनकन्फर्म एलसी। इफ देयर इज अ कंफर्मेशन ऑन दैट एलसी, देन इट विल बी कॉल्ड अ कंफर्म एलसी। सो जिस एलसी में कंफर्मेशन नहीं है, दैट इज अनकन्फर्म एलसी। और मैं ये कह अनकन्फर्म एलसी के बारे में ये भी कह सकता हूँ कि इट्स अ सिंगल लेयर ऑफ पेमेंट श्योरिटी। अनकन्फर्म एलसी में क्या होता है? कोई कंफर्मेशन दिया ही नहीं है कि इशूइंग बैंक अगर नहीं देगा तो मैं दे दूँगा, तो सिर्फ इसमें अंडरटेकिंग किसकी रही? इशूइंग बैंक की रही। इसके अलावा कोई और अंडरटेकिंग दे ही नहीं रहा है कि इशूइंग बैंक अगर फेल होगा तो मैं पे करूँगा। तो यहाँ पर जो श्योरिटी है पेमेंट की वो सिंगल लेयर है, यानी सिंगल श्योरिटी ही है कि अगर इशूइंग बैंक फेल्स देन ही विल मेक द पेमेंट। तो कब होगा वो ही विल मेक द पेमेंट? ओनली व्हेन देयर इज अ कंफर्मेशन एड बाय दैट बैंक। अगर कंफर्मेशन बैंक अपना कंफर्मेशन ऐड नहीं करता है तो सिंगल लेयर ऑफ पेमेंट श्योरिटी हुआ इसमें। अगर मैं कंफर्म एलसी और अनकन्फर्म एलसी की बात करूं तो कंफर्म एलसी जो है, अनकन्फर्म एलसी जो है वो कम सिक्योर है, क्योंकि कंफर्मेशन एलसी में तो दो बैंकों ने कंफर्म कर दिया है कि वो पे करेंगे। तो अनकन्फर्म तो लेस सिक्योर हुआ ना अगर मैं कंपेयर करूँ कन्फर्म्ड एलसी से, राइट। सो नाउ व्हाट इज कन्फर्म लेटर ऑफ क्रेडिट? जैसा कि मैंने बताया, इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ अनकन्फर्म एलसी। कन्फर्म एलसी में क्या होता है? टू लेयर ऑफ पेमेंट श्योरिटी होती है, पेमेंट प्रोटेक्शन होता है, टू लेयर ऑफ पेमेंट प्रोटेक्शन। फर्स्ट इज इशूइंग बैंक अंडरटेकिंग, आफ्टर दैट सेकंड अंडरटेकिंग इज गिवन बाय द कन्फर्मिंग बैंक। सो सेलर को यहाँ पर दो बैंक से कंफर्म मिल गया है कि अगर वो पे नहीं करेगा मैं पे कर दूंगा। तो दो बैंकों ने कंफर्म किया है दैट विल मेक द पेमेंट। तो एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब दो बैंक कंफर्म कर रहे हैं कि वो पेमेंट कर देंगे, तो एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ज़्यादा हाईली सिक्योर टाइप ऑफ एलसी हुआ, राइट। बट अगर कोई बैंक दूसरे बैंक के ब्याह पे बोलता है कि अगर ये दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। अगर कोई दूसरे बैंक किसी और बैंक के ब्याह पे अंडरटेकिंग दे रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है, तो वो रिस्की हुआ ना। अगर वो पे नहीं करेगा तो उसकी जेब में से जाएगा, तो वो रिस्की हुआ फ्रॉम दैट पॉइंट। तो अगर वो कंफर्म करेगा किसी दूसरे बैंक के ब्याह पे तो वो अपना कंफर्मेशन चार्जेस भी लेगा। तो वो अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये कॉस्टली मेथड है। कंफर्म्ड एलसी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली टाइप ऑफ मेथड, बट इट्स हाईली सिक्योर्ड इफ कंपेयर टू अदर एलसी। हाईली सिक्योर्ड है बट कॉस्टली भी है। कंफर्म एलसी में क्या होता है? कंफर्मिंग बैंक ऐसे नहीं अपने आप एलसी कंफर्म कर देता है, हाँ ठीक है इशूइंग बैंक दे देगा। नो, ही चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ दैट इशूइंग बैंक। जैसे कि इशूइंग बैंक ऐसी एलसी ओपन नहीं करता है, वो इंपोर्टर की चेक करता है बैकग्राउंड, क्या क्रेडिट वर्दीनेस है, क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इसकी, क्या फाइनेंशियल कंडीशन है इसकी, क्या वो पे कर सकता है। तो उसके बेसिस पे उसको चेक करने के बाद, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के बाद इंपोर्टर की इशूइंग बैंक अंडरटेकिंग देता है। ऐसे ही कंफर्मिंग बैंक अंडरटेकिंग देता है आफ्टर चेकिंग क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ दैट इशूइंग बैंक, राइट।
Now we will understand what is the process flow of a confirm LC. As usual, there is a contract happened between applicant and the beneficiary in the point number 1. After that, applicant applies for the confirm LC issuance request with his bank, applicant bank. That bank will transfer that LC to the confirming bank. Here the advising bank role is played by a confirming bank. Here confirming bank and the advising bank both are the same. Fourth point, that confirming bank once has received the LC from applicant bank, that advises that LC to the beneficiary. After that beneficiary will ship the goods and submit the document to confirming bank. Once the document is received by the confirming bank, then confirming bank will make the payment to the beneficiary on immediate basis. After making payment, confirming bank will forward those documents to the applicant bank. Once the applicant bank has received those documents, he will make the payment to the confirming bank. Right? After that, confirming bank will release those documents to the applicant after receiving debit instruction. Right? This is called the process flow of confirm LC. confirm LC का रोल जब आता है जब एक्सपोर्टर श्योर नहीं होता है कि इशूइंग बैंक पे करेगा नहीं करेगा, इशूइंग बैंक की हालत ठीक है, कर सकता है कि नहीं कर सकता, दिवाला ना निकले इशूइंग बैंक का। तो जब उसको ये डाउट रहता है इशूइंग बैंक के ऊपर, तो वो बोलता है मुझे एक और बैंक से कंफर्मेशन दिलाओ, दैट इज कॉल्ड कंफर्मिंग बैंक। वो ये कंफर्म करेगा अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं पे करूँगा। तो लेकिन इशूइंग बैंक तो किसी और अदर कंट्री में बैठा हुआ है, मतलब सपोज इशूइंग बैंक किसी इंडिया का है और एक्सपोर्टर अमेरिका का है सपोज, तो उसको डाउट है कि इंडिया का बैंक माइट भी पे ना करे, ड्यू डेट पे फेल हो जाए या दिवाला निकल जाए। तो वो एक्सपोर्टर क्या चाहेगा कि मुझे मेरे बैंक के थ्रू, यानी मेरी कंट्री में स्पेशली जो एडवाइजिंग बैंक होता है वही कंफर्मिंग बैंक का रोल ज़्यादातर निभाता है। तो वो क्या कहेगा एक्सपोर्टर कि मुझे कंफर्मेशन दिलाओ, मेरे ही बैंक से कंफर्मेशन दिलाओ। तो इशूइंग बैंक रिक्वेस्ट करता है टू एक्सपोर्टर बैंक टू ऐड हिज ओन कंफर्मेशन टू दैट एलसी, क्योंकि एक्सपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर की कंट्री में तो हाईली सिक्योर होगा फ्रॉम दैट पॉइंट। उसको अपने देश के बैंक पे तो यकीन होगा ना कि वो पे कर देगा, अगर वो पे नहीं करेगा तो वो डबल कंफर्मेशन हो जाता है। तो कंफर्मिंग बैंक का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। So this is the process flow of a confirmed LC. Now one of the most important type of LC, that is red clause LC, RLC. Red clause LC is that LC where the exporter will pre-shipment finance by the importer. रेड क्लॉज एलसी वो एलसी होती है जहाँ पर एक्सपोर्टर को प्री शिपमेंट फाइनेंस मिल जाता है। प्री शिपमेंट फाइनेंस इज दैट फाइनेंस वेयर ही गेट द फाइनेंस फ्रॉम importer before shipping the goods, right? रेड क्लॉज एलसी क्या एलसी होती है जिसमें एक्सपोर्टर को पहले ही कुछ पोर्शन का पैसा मिल जाता है, कुछ पैसा मिल जाता है एक्सपोर्टर को कि आप ठीक है रॉ मटेरियल परचेज करिए, गुड्स बनाइए, मैन्युफैक्चर करिए, पैकिंग करिए गुड्स को, तो उन सब के लिए जो खर्चा आता है दैट इज कॉल्ड प्री शिपमेंट। तो वो खर्चे को पूरा करने के लिए जो फाइनेंस मिलता है दैट इज कॉल्ड प्री शिपमेंट फाइनेंस। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर को एक बेटर एडवांटेज ये हो जाता है कि उसको कुछ फाइनेंस मिल जाता है अपना रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा, फिर उनको पैक करेगा, तो उस सब चीज़ के लिए जो खर्चा आएगा उसके लिए उसको पहले से ही पैसा मिल जाता है फ्रॉम इम्पोर्टर। तो एक तरीके का प्री शिपमेंट फाइनेंस मिल जाता है एक्सपोर्टर को फ्रॉम इम्पोर्टर। अच्छा, इसका रेड क्लॉज नाम इसलिए रखा गया है कि इसको टाइप किया हुआ है। अब जब भी कोई एलसी इशू होती है तो उसको रेड इंक में या रेड करके टाइप करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेड क्लॉज एलसी। यानी एलसी का जो क्लॉज होता है उसको हाईलाइट कर देंगे रेड में, तो उसको इसलिए नाम लिखा गया रेड क्लॉज एलसी। रेड क्लॉज एलसी को मैं एडवांस पेमेंट एलसी भी बोल सकता हूँ। अब मैं एडवांस पेमेंट एलसी क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली एक्सपोर्टर को क्या है, हम एडवांस में तो पे कर रहे हैं। एलसी की वैल्यू का कुछ परसेंटेज हम एक्सपोर्टर को एडवांस में दे रहे हैं। क्यों? कि भाई आप गुड्स परचेज करो, रॉ मटेरियल परचेज करो
और पैक करो, मैन्युफैक्चर करो, शिप करो, वो सब करने के लिए क्या है, हम उसको एडवांस ही तो दे रहे हैं। तो रेड क्लॉज एलसी इज व्हाट, इट्स एन एडवांस पेमेंट एलसी वेयर इशूइंग बैंक मेक्स पेमेंट टू द बेनिफिशियरी इन एडवांस बिफोर द शिपमेंट ऑफ द गुड्स। ठीक है, गुड्स को शिप करने से पहले जब एक्सपोर्टर को एडवांस में कुछ पैसा मिल जाता है, शिप होने से पहले बहुत काम होते हैं, गुड्स बनाना होता है, रॉ मटेरियल खरीदना होता है, उनको पैक करना होता है, इन सब कामों के लिए जब पैसा मिलता है बेनिफिशियरी को इंपोर्टर से, तो इसमें क्या होता है, फिर क्या हुआ है, व्हाट इज दिस इज एडवांस पेमेंट एलसी, क्योंकि उसको पैसे पहले ही एडवांस मिल गया एक्सपोर्टर को इशूइंग बैंक से बिफोर शिपिंग द गुड्स, तो इट इज कॉल्ड एडवांस पेमेंट एलसी। अब इसमें जो एडवांस मिलता है वो कितना मिलता है, इसमें एडवांस जो बेनिफिशियरी को मिलता है वो 20 से 25% के बीच में मिलता है ऑफ द होल एलसी वैल्यू। सपोज एक एलसी इशू हुई है और वो एडवाइस होगी बेनिफिशियरी को फॉर $1,00,000, तो उसका 20 to 25% कितना हुआ, 20,000 या $25,000, तो $20,000 to $25,000 आउट ऑफ $1,00,000 इज पेड टू द बेनिफिशियरी इन एडवांस as a pre-shipment finance, right? This is called red clause LC. Now what is green clause LC? Green clause LC is what? I can say that it's a combination of red clause LC plus it also provide warehousing facility. ग्रीन क्लॉज एलसी को मैं ये बोल सकता हूँ कि वो रेड क्लॉज एलसी वाली फीचर तो देता ही देता है, साथ में वेयर हाउसिंग की भी फैसिलिटी देता है। यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि रेड क्लॉज एलसी में क्या होता है, प्री शिपमेंट फाइनेंस अवेलेबल रहता है, उसको एक्सपोर्टर को प्री फाइनेंस मिल जाता है, और यहाँ पे प्री शिपमेंट फाइनेंस तो मिलता ही मिलता है, साथ में स्टोरेज फैसिलिटी या वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी मिलती है पोर्ट ऑफ डिपार्चर पे इशूइंग बैंक के द्वारा, या पोर्ट ऑफ डिपार्चर बोल सकता हूँ, या फिर मैं पोर्ट ऑफ ओरिजिन भी बोल सकता हूँ, राइट। तो ग्रीन क्लॉज एलसी में मैं बोल सकता हूँ इट्स एक्सटेंशन ऑफ दैट रेड क्लॉज एलसी। ग्रीन क्लॉज एलसी इज व्हाट, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ रेड क्लॉज एलसी, यानी रेड क्लॉज एलसी तो फीचर है ही है, साथ में वो स्टोरेज फैसिलिटी भी दे रहा है, राइट। अब इसका नाम ग्रीन क्लॉज एलसी क्यों रखा हुआ है, जैसा मैंने बताया रेड क्लॉज एलसी को रेड में टाइप करते हैं, रेड में इंक करते हैं, तो वो रेड क्लॉज एलसी होगा। ऐसे इसको ग्रीन में करते हैं, ग्रीन में टाइप करते हैं, ग्रीन में इंक करते हैं, तो इट इज कॉल्ड ग्रीन क्लॉज एलसी। ग्रीन क्लॉज एलसी सबसे ज़्यादा फेवरेबल होती है बायर के। ऐसा क्यों, बायर के लिए वो फेवरेबल तब ज़्यादा रहती है कि बायर जो उसको रेड क्लॉज एलसी में क्या एडवांस पेमेंट तो दे ही रहा है, साथ में वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी दे रहा है। तो अगर मैं वेयर हाउसिंग फैसिलिटी और रेड क्लॉज एलसी का अगर मैं कंसिडर करूं, तो ये टोटल एलसी वैल्यू को 70 to 80% कवर करता है। अगर रेड एडवांस भी दे रहा हूँ मैं, पूरा प्री शिपमेंट फाइनेंस भी दे रहा हूँ और वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी दे रहा हूँ, तो वो टोटल एलसी के वैल्यू को 70 to 80% कवर कर लेता है। तो इम्पोर्टर जो पे कर रहा है उसको 80% या 70% एलसी वैल्यू का, दैट इज अगेंस्ट दोज गुड विच इज ऑलरेडी रेडी टू शिप। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी क्या होता है कि उसमें जो गुड्स ऑलरेडी शिप के लिए तैयार है, शिप होने के लिए तैयार है, सब कुछ तैयार है, उसमें बस शिप करना है, तो उन गुड्स के अगेंस्ट ही तो एडवांस दे रहा है, उन गुड्स के अगेंस्ट ही तो उसको वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे रहा है जो ऑलरेडी तैयार है शिप होने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल हुआ ना कि बायर को तो ये एश्योर हो गया कि मैं तो उस गुड्स के अगेंस्ट पेमेंट कर रहा हूँ एडवांस में जो ऑलरेडी तैयार है शिप होने के लिए, तो इट्स मोस्ट फेवरेबल फॉर द बायर। whereas in red clause LC it's making the pre-shipment finance facility to the exporter but it's highly risky। क्या पता वो एक्सपोर्टर किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करे प्री शिपमेंट को फाइनेंस का। बट रेड ग्रीन क्लॉज एलसी में क्या होता है ना कि वो उसको वेयर हाउसिंग के अगेंस्ट और रेड क्लॉज एलसी के फीचर के साथ साथ उसको वो सर्विस दे रहा है, तो उसको ये श्योर है कि वो तो गुड्स के अगेंस्ट ही दे रहा है जो शिप होने के लिए तैयार है। सो ग्रीन क्लॉज एलसी इज मोस्ट फेवरेबल टू बेनिफिशियरी। जैसा कि मैंने बताया था इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ रेड क्लॉज एलसी, मतलब कि वो एडवांस की फैसिलिटी तो दे रहा है, साथ में वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी दे रहा है ओरिजिन पोर्ट पे, डिपार्चर पोर्ट पे, जो ओरिजिन पोर्ट पे वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी भी दे रहा है एडवांस के साथ। दैट इज कॉल्ड ग्रीन क्लॉज एलसी। तो ग्रीन क्लॉज एलसी कब इशू करवाता है इंपोर्टर, एक्चुअली जब भी किसी को वीट बाय करना है, राइस बाय करना है, तो ये जो वेजिटेबल रिलेटेड आइटम्स होते हैं
इनके लिए जो कमोडिटी मार्केट्स में आइटम सेल होते हैं, बाय सेल होते हैं, उनके लिए ग्रीन क्लॉज एलसी का ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। अच्छा, मैं डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करूँ इन ग्रीन क्लॉज एलसी और रेड क्लॉज एलसी, तो ग्रीन क्लॉज एलसी में ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी चाहिए होता है। डॉक्यूमेंट टाइटल इज़ व्हाट, डॉक्यूमेंट टाइटल ये होता है कि वो ये कंफर्म करता है कि दैट इज़ कि वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी में जो ऑलरेडी उसने लिया हुआ है, तो वो उन गुड्स के अगेंस्ट है जो ऑलरेडी शिप होने के लिए तैयार है, तभी तो वो रेड क्लॉज एलसी को ग्रीन क्लॉज एलसी में कन्वर्ट करेगा, राइट। तो ग्रीन क्लॉज एलसी में सब डॉक्यूमेंट के साथ साथ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी चाहिए होता है। अब मैं इसमें बात करूं कि कितने परसेंट का मुझे एक्सपोर्टर को एडवांस मिल जाता है, दैट इज़ 75 to 80% का एक्सपोर्टर को एडवांस मिल जाता है। वेयर हाउसिंग विद फैसिलिटी देता है वो, और 20-25 वो देता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 75-80% का उसको एडवांस में मिल जाता है। साइट एलसी, ये अनदर एलसी टाइप है। साइट एलसी को मैं पेमेंट एलसी भी बोल सकता हूँ। साइट एलसी में क्या होता है ना कि बायर को इमीडिएट पे करना होता है जैसे ही इशूइंग बैंक के पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा। एक्सपोर्टर ने शिप किया गुड्स, अपने डॉक्यूमेंट शिपिंग डॉक्यूमेंट अपने बैंक को सबमिट किया, उसके बैंक ने इंपोर्टर के बैंक को डॉक्यूमेंट सबमिट किया। जैसे ही इंपोर्टर के बैंक के पास डॉक्यूमेंट आया और वो साइट बिल है, then importer has to make the payment immediately. After making the payment, he can take the delivery of the goods, or he can take the document from the issuing bank post making the payment. In site LC, there is no requirement of bill of exchange, but it can provide as a additional document along with document. साइट एलसी में क्या होता है, इशूइंग बैंक को 5 days के अंदर पेमेंट करना पड़ता है जैसे उसके पास डॉक्यूमेंट आता है। अगर बैंक के पास बैंकिंग टाइम में, बैंकिंग आवर्स में डॉक्यूमेंट आया, देन फ्रॉम सिंस दैट डेट टू नेक्स्ट 5 days ही हैज़ टू मेक द पेमेंट, एल्स ही हैज़ टू मेक द पेमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सो दिस इज कॉल्ड द साइट पेमेंट। व्हाट्स द प्रोसेस फ्लो ऑफ एलसी इन साइट? First of all, there is an agreement happened between exporter and importer. After that, importer applies for an LC issuance request from his bank. His bank transfers that LC to the exporter bank. Exporter bank that advises that LC to the exporter. After receiving the LC, the exporter ship the goods and receive the document from shipping company. Then it will submit those documents to his bank, that is exporter bank. Exporter bank will forward those documents to importer bank. Once receiving the document, the importer bank will generate the memo and will share that memo to the importer that he has received so and so document on site basis. So once that payment authority is provided by the importer, the issuing bank make the payment on a site to the exporter bank. Then exporter bank will forward that payment and settle that payment in beneficiary account. Once the payment is settled, then the importer bank will release the document. This is the process flow of a site LC. Now we will discuss what is usance LC. As you can see this, in usance LC we can call usance LC as following LC as well as. We can call usance LC as an acceptance LC. We can call it as time LC. We can call it as date LC. We can call it as term LC. So there are multiple names of usance LC, that is acceptance LC, time LC, date LC, term LC. In usance LC, it's just opposite to the site LC, where in site he has to make the payment on immediate basis, but in usance LC he has to make the payment on a certain future date. Where in site LC the buyer is not availing any credit period, but in usance the credit period is extended to the buyer so that he will make the payment on a future due date. When the type of LC is usance, then bill of exchange is the mandatory document to accept that bill. In usance case, bill of exchange is mandatory. In usance, the payment will be made on a future date as per the maturity date of that LC.
जो भी एलसी की टर्म्स एंड कंडीशन है, जो पेमेंट टर्म्स है कि 30 डेज फ्रॉम इनवॉइस डेट, 30 डेज फ्रॉम बिल ऑफ लीडिंग डेट, 30 days from that bill of exchange date, whatever it is, the payment will be made as per the tenor mentioned in that LC. Right? What is the process flow of LC? It's quite similar to that site LC, but there is slight change. First of all, there is agreement happened between importer and exporter. After that, importer applies for an LC issuance request to his bank, importer bank. Importer bank will forward this LC to the exporter bank. Exporter bank, after receiving LC from importer bank, will advise that LC to the exporter. Once the exporter receive the LC, it will ship the goods to the shipping company. Shipping company will in return will provide the original shipping document which he submitted to his bank, exporter bank. Exporter bank will forward those documents to the issuing bank. That issuing bank will release those documents to the importer only once he accepts that bill of exchange or document, wherein he confirmed that he will make the payment on a future date. After that, on future date or maturity date, importer will provide the payment authority to the importer bank. Then importer bank will make the payment to the exporter bank. After that, exporter bank will settle the payment in importer's account, exporter account, sorry. So this is the process flow of a usance LC. Now another type of LC is import LC. अब नाम से ही पता चलता है import LC, यानी कि LC issued by a issuing bank on behalf of the importer is called import LC. Import LC क्या होता है? LC कौन इशू करता है? इंपोर्टर का बैंक. किसके ब्याह पे? इंपोर्टर के ब्याह पे. तो इंपोर्टर का बैंक इंपोर्टर के ब्याह पे एलसी को इशू करेगा तो इंपोर्ट एलसी ही तो इशू करेगा, राइट? इंपोर्टर का बैंक इंपोर्टर के ब्याह पे जो एलसी इशू करता है दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट एलसी. एंड फॉर अनदर पार्टी, फॉर एक्सपोर्टर इट वुड बी अ एक्सपोर्ट एलसी. यानी अगर हमारे लिए वो इंपोर्ट एलसी है तो वो उस पार्टी के लिए क्या हुई? वो एक्सपोर्ट एलसी हुई, राइट? तो हियर बैंक कस्टमर इज द इंपोर्टर, ऑब्वियस. अगर एलसी अपना पार्टी एलसी इशू कर रहा है, अपना पार्टी का अपना बैंक जो इशू कर रहा है तो उसका कस्टमर क्या हुआ? इंपोर्टर हुआ ना, तभी तो उसने इंपोर्ट एलसी इशू करा है. अगर कोई बैंक एलसी इशू करता है तो उसका कस्टमर कौन हुआ? इंपोर्टर. इंपोर्टर के ब्याह पे एलसी इशू करता है इंपोर्टर, राइट? इंपोर्टर का बैंक. इंपोर्ट एलसी में क्या होता है ना, इंपोर्टर का जो बैंक होता है, इंपोर्टर जो होता है उसको इंपोर्ट के अगेंस्ट उसको पेमेंट करना होता है. यानी कि जो बैंक का कस्टमर होता है यानी इंपोर्टर जो होता है उसको क्या करना होता है इंपोर्ट एलसी में, कि उसका जो इंपोर्ट आएगा, उसका जो गुड्स आएगा या उसकी सर्विसेज जो ली हैं उसने, उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ता है? उसको पेमेंट करना पड़ता है जब भी उसके अगेंस्ट बिल आएगा. तो इंपोर्ट एलसी में क्या होता है? इंपोर्टर का बैंक फुल लायबिलिटी लेता है जब तक वो एलसी कंप्लीट नहीं हो जाती. तो उसको तो पेमेंट करना है ना. इंपोर्टर अगर फेल हो गया तो कौन पेमेंट करेगा? इंपोर्टर का बैंक करेगा ना. तो उसकी लायबिलिटी तो ओपन है, खड़ी की खड़ी है लायबिलिटी उसकी, कि उसको पे करना है अगर इंपोर्टर फेल हो गया. तो इंपोर्ट एलसी वो एलसी होती है जो इंपोर्टर के ब्याह पे खोलता है इंपोर्टर का बैंक. तो इसमें बैंक का कस्टमर कौन हुआ? इंपोर्टर. यहाँ बैंक की लायबिलिटी ओपन रहती है अनटिल अनलेस जब तक एलसी की साइकिल कंप्लीट ना हो जाए. तो यहाँ बैंक इंपोर्टर के बैंक के कस्टमर जो होता है, इंपोर्टर जो होता है, उसको पेमेंट करना होता है जब भी उसके अगेंस्ट बिल आए एलसी के अगेंस्ट. नाउ व्हाट इज एक्सपोर्ट एलसी? इट्स जस्ट अपोजिट टू द इंपोर्ट एलसी. जैसे इंपोर्टर का बैंक इंपोर्टर के बिहाफ पे एलसी इशू करता है तो उसके लिए तो वो इंपोर्ट एलसी हुआ. तो वो हमारे लिए क्या हुआ? हमारे लिए एक्सपोर्ट एलसी हुआ, राइट? So what is export LC? When the LC issued by importer bank in favor of beneficiary or his bank is called as export LC. तो यहाँ पे बैंक का कस्टमर कौन हुआ? एक्सपोर्टर. यहाँ बैंक का कस्टमर क्या है? जब एक्सपोर्टर हुआ तो एक्सपोर्ट करेगा गुड्स, तो उसके पास क्या आएगा? पैसा आएगा ना इन रिटर्न. वो गुड्स एक्सपोर्ट करेगा, गुड्स शिप करेगा, तो उसके पास क्या आएगा? पैसा आएगा. तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर का बैंक है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसको तो सिर्फ डॉक्यूमेंट इधर से उधर करना है, या पेमेंट आएगा तो उधर से इधर करना है.
ना उसको पे करना है, ना ही उसको उसकी लायबिलिटी ओपन है कोई। सो हियर एक्सपोर्टर के बैंक को कोई लायबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि उसको पे नहीं करना होता है, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है उसमें। सो हियर एक्सपोर्टर बैंक अज्यूम नो लायबिलिटी और नो रिस्क इन एडवाइजिंग दैट एलसी till that LC is expired or retired. Another type of LC is without recourse LC. विदाउट रिकोर्स एलसी वो होती है कि ये तो हुआ नॉर्मल एलसी, यहाँ पे इंपोर्टर ने एलसी के लिए अप्लाई किया, एक्सपोर्टर के पास एलसी एडवाइस हुआ, एक्सपोर्टर ने गुड्स शिप किया और डॉक्यूमेंट अपने बैंक को दे दिया, उसके बैंक ने इंपोर्टर के बैंक को दे दिया, इंपोर्टर ने पे कर दिया। दैट इज द नॉर्मल एलसी, राइट। विदाउट रिकोर्स एलसी वो एलसी होती है जिसमें नेगोशिएशन होता है। विदाउट रिकोर्स एलसी और विद रिकोर्स एलसी उसी केस में अप्लाई होता है जिसमें नेगोशिएशन होता है या ऑनर होता है या बिल परचेज होता है, राइट। तो विदाउट रिकोर्स क्या होता है ना, इसमें नेगोशिएटिंग बैंक ना एक्सपोर्टर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता अगर इशूइंग बैंक फेल हो जाए पेमेंट से। मतलब जैसे कि एक्सपोर्टर के पास एलसी आ गया एडवाइस होके, तो एक्सपोर्टर ने गुड्स शिप कर दिया, तो एक्सपोर्टर ने क्या किया कि उसको पैसा चाहिए इमीडिएटली। तो व्हाट विल एक्सपोर्टर डू, एक्सपोर्टर विल सबमिट दोज डॉक्यूमेंट टू नेगोशिएटिंग बैंक। तो नेगोशिएटिंग बैंक के पास जब डॉक्यूमेंट आएगा तो नेगोशिएटिंग बैंक चेक करेगा, डॉक्यूमेंट ओके है तो वो बिल को परचेज कर लेगा, यानी बिल को ऑनर कर देगा, बिल को डिस्काउंट कर लेगा, नेगोशिएट कर लेगा। तो जब वो नेगोशिएट करेगा, परचेज करेगा, ऑनर करेगा, तो वो क्या करेगा, वो एक्सपोर्टर को पे कर देगा आफ्टर डिडक्टिंग इट्स चार्जेस, और एक्सपोर्टर को पे कर देगा। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट उठा के इशूइंग बैंक को दे देगा और फिर उसके बाद इशूइंग बैंक उसको पेमेंट कर देगा। तो ये होता है नेगोशिएटिंग बैंक है। लेकिन अब विदाउट रिकोर्स क्या होता है, विदाउट रिकोर्स ये होता है, अब जैसे नेगोशिएटिंग बैंक ने तो एक्सपोर्टर को पैसा दे दिया, राइट। अब ये भी तो पॉसिबल है कि भाई ड्यू डेट पे नेगोशिएटिंग बैंक को पैसा ना मिले, रिस्क है ना। तो इस केस में क्या होता है, विदाउट रिकोर्स एलसी में क्या होता है कि जैसे ही नेगोशिएटिंग बैंक ने अच्छा ठीक है मैं आपका बिल परचेज कर लेता हूँ, नेगोशिएटिंग बैंक ने बिल परचेज कर लिया, एक्सपोर्टर को पैसा दे दिया और इशूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट भेज दिया। इशूइंग बैंक को ड्यू डेट पर उसको पैसा देना है नेगोशिएटिंग बैंक को, बट इशूइंग बैंक फेल्स ऑन मेकिंग पेमेंट ऑन ड्यू डेट। तो फिर नेगोशिएटिंग बैंक एक्सपोर्टर के पास जाकर ये क्लेम नहीं कर सकता है कि आप मुझे मेरा पैसा वापस दो, मुझे इशूइंग बैंक ने पैसा ही नहीं दिया। नो, in without recourse basis LC, the negotiating bank cannot make liable the exporter if the issuing bank fails. अगर नेगोशिएटिंग बैंक ने नेगोशिएट कर रखा है, बिल परचेज कर रखा है, डॉक्यूमेंट कर रखा है, ऑनर कर रखा है और उसने एक्सपोर्टर को पे कर दिया और डॉक्यूमेंट इशूइंग बैंक को दे दिया, तो वो उस केस में अगर विदाउट रिकोर्स एलसी है तो उस केस में एक्सपोर्टर से पैसा वापस नहीं ले सकता है, राइट। सो विदाउट रिकोर्स बेसिस में द नेगोशिएटिंग बैंक कैन नॉट मेक द एक्सपोर्टर लायबल टू रिफंड दैट पेमेंट टू द नेगोशिएटिंग बैंक इफ द इशूइंग बैंक इज फेल। अगर इशूइंग बैंक फेल हो जाता है तो नेगोशिएटिंग बैंक एक्सपोर्टर से अपना पैसा वापस नहीं ले सकता है अगर वो विदाउट रिकोर्स एलसी है तो, ठीक है। A negotiating bank does not seek any undertaking from exporter for refund of paid amount as payment is on non-recourse basis. अच्छा, विदाउट रिकोर्स एलसी को मैं नॉन रिकोर्स एलसी भी बोल सकता हूँ, इसका दूसरा नाम है विदाउट रिकोर्स। विदाउट मतलब बिना रिकोर्स के, यानी नॉन रिकोर्स। सो विदाउट रिकोर्स एलसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन रिकोर्स एलसी, राइट। इसमें वो कोई भी अंडरटेकिंग नहीं लेगा एक्सपोर्टर से और ना ही एक्सपोर्टर उसको देगा कि अगर इशूइंग बैंक फेल हो गया तो मैं पेमेंट आपको वापस कर दूंगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सो इट्स अ रिस्की पॉइंट फ्रॉम नेगोशिएटिंग बैंक, बट इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट टाइप ऑफ एलसी फ्रॉम एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर ये विदाउट रिकोर्स एलसी है और उस पर कंफर्मेशन है देन इट विल बी ऑलवेज ऑन अ नॉन रिकोर्स, या मैं कह सकता हूँ कन्फर्म एलसी है। जो भी कन्फर्म एलसी होती है कन्फर्म, वो हमेशा नॉन रिकोर्स बेसिस पे ही परचेज होंगे, या मैं बोल सकता हूँ विदाउट रिकोर्स बेसिस पे ही परचेज होंगे।
So what is without recourse LC? It is that type of LC wherein the exporter cannot refund the payment to the negotiating bank if the applicant or issuing bank fails to make the payment to the negotiating bank. So it is the safest type of LC from exporter point of view, right? Now what is with recourse LC? Now this is with recourse LC wherein the negotiating bank can make the exporter liable if the applicant fails. विद रिकोर्स एलसी वो एलसी होती है जो जस्ट अपोजिट होती है विदाउट रिकोर्स एलसी। इसमें क्या है, नेगोशिएटिंग बैंक एक्सपोर्टर को लायबल कर सकता है कि भाई आपके बैंक ने मुझे इशूइंग बैंक ने मुझे पैसा नहीं दिया, आप मुझे मेरा पैसा विद इंटरेस्ट के साथ वापस करो। तो इस कंडीशन के लिए नेगोशिएटिंग बैंक क्या करता है ना, एक्सपोर्टर से एक अंडरटेकिंग लेता है कि आप मुझे मेरा पैसा वापस दोगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, अगर इशूइंग बैंक मुझे पैसा वापस नहीं देता है तो। सो विद रिकोर्स एलसी इज व्हाट is that type of LC where the negotiating bank can make the exporter liable to refund the payment along with interest if the issuing bank fails. With recourse LC को मैं recourse LC भी बोल सकता हूँ। recourse LC और with recourse LC both are the same. So it's a risky type of LC from exporter point of view, क्योंकि रिस्की तो है ना, एक्सपोर्टर को पैसा देना पड़ सकता है इंटरेस्ट के साथ अगर इशूइंग बैंक ने नहीं दिया, राइट। जो भी अनकन्फर्म एलसी होती हैं, नेगोशिएबल एलसी होती हैं, वो ऑलवेज रिकोर्स बेसिस पे होती हैं, राइट। व्हाट इज डेफर्ड एलसी? डेफर्ड एलसी कुछ नहीं होता है, डेफर्ड एलसी इज जस्ट सिमिलर टू यूजांस एलसी। डेफर्ड एलसी और यूजांस एलसी एक ही होती हैं, बस इसमें एक ही डिफरेंस होता है कि डेफर्ड एलसी में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इन यूजांस एलसी यू हैव टू सबमिट द बिल ऑफ एक्सचेंज टू एक्सेप्ट दैट बिल, बट इन केस ऑफ डेफर्ड पेमेंट देयर इज नो नीड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज टू एक्सेप्ट द पेमेंट, बट हियर पेमेंट विल बी मेड ऑन अ फ्यूचर डेटेड ओनली as similar to यूजांस बिल। in deferred payment also the payment will be made on a certain future date only. Now the two LC which were left, the two type of LC is restricted LC and unrestricted LC. restricted LC वो LC होते हैं जिसमें कि एक बैंक को नॉमिनेट कर दिया जाता है कि आप क्रेडिट आप बैंक आपके पास रहेगा। मतलब कभी भी एक्सपोर्टर को कोई बिल परचेज कराना है, डिस्काउंट कराना है, नेगोशिएट कराना है, ऑनर कराना है, तो एक्सपोर्टर को उस नॉमिनेटेड बैंक के पास ही डॉक्यूमेंट को लेके जाना पड़ेगा अगर वो उसको वो बिल ऑनर कराना है तो। अब वो नॉमिनेटेड बैंक कौन है? वो जब एलसी इशू होता है तो एक क्लॉज होता है एलसी में जिसको इशूइंग बैंक मेंशन करता है, यानी ए स्पेसिफिक बैंक नेम that LC is restricted to this बैंक। तो जिस बैंक का नाम लिखा हुआ है कि LC is restricted to this बैंक या credit is available with this bank, then the exporter can discount these document or purchase the document or honor these document from that bank only, whereas in unrestricted case it's just opposite to the restricted LC. In unrestricted LC the exporter can submit docs to any bank so that bank can negotiate or discount these documents. Here the credit is available freely with any bank. So this is called unrestricted LC. Unrestricted LC क्या होती है? इसमें क्रेडिट अवेलेबल होता है फ्रीली, मतलब इसमें किसी बैंक का नाम नहीं होता है, वो किसी बैंक के पास जाएगा, बिल और डिस्काउंट करा लेगा और क्लेम लॉन्च करवा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज स्टैंड बाय एलसी। SBLC स्टैंड फॉर स्टैंड बाय एलसी। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे बैंक एक गारंटी देता है कि वो पे करेगा, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट को वो पे करेगा सेलर को अगर बायर डिफॉल्ट होता है। अब आप बोलोगे कि एलसी और SBLC में क्या डिफरेंस है? SBLC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ LC एज वेल एज बैंक गारंटी। अब बैंक गारंटी क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। SBLC क्या होता है ना, वो LC और बैंक गारंटी का कॉम्बिनेशन है। SBLC ज़्यादातर क्या अमेरिका साइड में यूज ज़्यादा होता है कि वहाँ पे प्रेफर नहीं करते हैं, तो वो इसलिए वो SBLC को प्रेफर ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे उनका लॉ उनको अलाउ नहीं करता है इशूइंग दैट LC, सो इशूइंग दैट बैंक गारंटी, राइट। तो दे वर प्रेफर SBLC. So it's a what? It's a legal document which guarantees the payment to the
seller for a specific amount if the buyer fails. अब एलसी भी यही होता है, लेकिन एलसी में क्या होता है, इशूइंग बैंक पे करता है, इशूइंग बैंक पे करता है और वो एश्योर करता है कि जो पेमेंट है, जो भी ट्रांजैक्शन है, विल गो एज पर द प्लान. अगर एलसी के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग है तो इशूइंग बैंक विल मेक द पेमेंट. If it is not as per the terms and condition, it will not make the payment until and unless that applicant will accept the bill. But स्टैंड बाय एक्शन में तभी आता है जब बायर डिफॉल्ट करता है, यानी वो पहले बायर को ऑप्शन देता है यू हैव टू फुलफिल बोथ फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट. इफ द बायर डिफॉल्ट्स then that buyer's bank has to make the payment. But in case of LC, it is assured that everything goes well as per the plan of that LC. तो LC क्या होता है, सब अकॉर्डिंगली चलता है टर्म्स एंड कंडीशन के. बट यहाँ पे SBLC में क्या होता है ना, अगर बायर डिफॉल्ट्स तो उसको पे करना पड़ता है. LC को अगर मैं बोलूँ, LC इज अ प्राइमरी मेथड, क्योंकि उसमें इशूइंग बैंक पे करता है. If everything goes in us same as stated in the credit. But SBLC में क्या होता है ना, अगर कोई भी नॉन परफॉर्मेंस रहा, नॉन फाइनेंशियल फुलफिलिटी रहा फ्रॉम बायर साइड कॉन्ट्रैक्ट के वैलिडिटी में, तब बैंक, बायर का बैंक एक्ट करता है. सो ये सेकेंडरी मेथड हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमरी मेथड डील्स विद द बायर एंड सेलर एज वेल एज. If the buyer fails, then the secondary method applies, that bank will make the payment. So it's a secondary method. ये तभी एक्शन में आएगा या तभी फोर्स में आएगा जब डिफॉल्ट होगा बायर की तरफ से, चाहे वो फाइनेंशियली हो या परफॉर्मेंसली हो. SBLC दो टाइप्स के होते हैं, एक फाइनेंशियल SBLC होता है, एक परफॉर्मेंस होता है. फाइनेंशियल में होता है कि वो बायर कभी भी अगर फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग अगर वो फुलफिल नहीं कर पाता है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की, तो फाइनेंशियल SB होता है. परफॉर्मेंस LC इज दैट LC जहाँ पर भी बायर अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल नहीं कर पाता है एंड जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस LC. तो कहीं भी दोनों LC में डिफॉल्ट होगा, दोनों टाइप के SBLC में डिफॉल्ट होगा, देन द सेलर विल लॉन्च हिज क्लेम फ्रॉम बायर्स बैंक. So this is about the type of LC. Thanks for watching.